Welcome everybody. So we start a new topic today, that is chemical reactions and equations. First we'll revise few concepts that we studied in our earlier class, that is 9th. हमने पढ़ा था atom is what? It is the smallest indivisible particle, सबसे छोटा particle that cannot be divided further. ये किसने बोला था कि atom cannot be divided further? It was said by Dalton. Dalton ने कहा था atom is the smallest indivisible particle. लेकिन later on उसका एक drawback आया था क्या कि it can be divided further into what? Protons, electrons and neutrons. Now हमने पढ़ा था there are three main types of matter: solid, liquid and gas. Main three categories. कोई भी solid, कोई भी लिया हमने, it is made up of छोटे-छोटे particles that are known as atoms. Liquid लिया कोई भी हमने, it is also made up of छोटे-छोटे small particles that are known as atoms. Similar way in case of gases. Next, we studied about substances, two kinds of substances, elements and compounds. Elements are those that are made up of only one type of atoms. Compounds are those that are made up of different types of atoms. जैसे कि elements, कुछ examples, जैसे कि iron nail लिया, it is made of small particles or atoms. एक जैसे अलग अलग, एक जैसे, similar kind. एल्यूमिनियम की शीट ली, छोटे पार्टिकल्स हैं, किसके? एल्यूमिनियम के. सल्फर गैस, छोटे पार्टिकल्स, किसके? सल्फर गैस के. कॉपर की वायर, ब्रोमीन गैस, क्लोरीन गैस, इट इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ क्लोरीन. इन क्लोरीन हमने पढ़ा था क्लोरीन इज अ डायटोमिक, ब्रोमीन इज डायटोमिक. डायटोमिक मतलब टू एटम्स कंबाइंड टुगेदर, ठीक है. क्लोरीन इज अ डायटोमिक gas, therefore two atoms of chlorine combine together to form a molecule of chlorine. Bromine molecule, iron सिर्फ एक ही atom exist करता है, monovalent है, ठीक है, monovalent. Fe. Further, suppose water is a compound, H2O is a compound made up of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen chemically combined together in a fixed proportion. Further, NaCl made up of two elements, one is sodium, the other is chlorine. Calcium carbonate, fine. ये इससे मार्बल जो हमारे घरों में लगा हुआ है, that is calcium carbonate, ठीक है. limestone, so it is made up of calcium, carbon and oxygen. तीन अलग अलग elements के atoms combine करते हैं to form calcium carbonate, that is a compound. So अभी हमने क्या पढ़ा? First we studied about elements that are made up of only one type of atoms. For example, iron, gold, silver, copper, ठीक है, bromine, chlorine, oxygen, all these are elements made up of only one type of atom. Next we studied about compounds made up of two or more type of atoms chemically combined together. For example, NaCl है, पानी है, calcium carbonate है, ठीक है, sugar है, salt, NaCl, ठीक है. Next, what we studied in the last class was that number of electrons are equal to number of protons in an atom. Electrons हमेशा proton के बराबर रहते हैं. Number of electrons and number of protons in atoms of different elements is also different. जैसे क्या मतलब हुआ इसका? Suppose पहले तो हम समझते हैं, हीलियम लेते हैं जी, हीलियम, ये हमने क्लास 9 में. हीलियम एटॉमिक नंबर क्या है उसका? Atomic number is 2. Atomic number 2. Therefore, it is having कितने protons? Protons are 2. Electrons are also 2. Both are equal. Both are equal. Next, suppose मैं लूँ oxygen. Oxygen, atomic number oxygen का. Oxygen का atomic number 8. Atomic mass 16. ठीक है, atomic number चाहिए अभी. क्लास 9 में पढ़ा था, याद होने चाहिए. 1 से लेके 20 तक सारे एलिमेंट्स के आपको atomic number याद होने चाहिए, ठीक है. अगर नहीं याद है प्लीज रिवाइज करिए अच्छे से. 1 to 20. अब ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, दैट इज 8. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो 8. सो हमने क्या पढ़ा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम. किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दोनों बराबर. लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स में, जैसे कि हीलियम इज डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीजन, इसलिए दोनों के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हैं आपस में. When we combine helium and oxygen, दोनों के अंदर प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हैं, ठीक है. नेट चार्ज ऑन एन एटम इज
0, therefore atom is neutral. For example, ऑक्सीजन का अगर मैं एटम लूं, it is neutral. Why it is neutral? क्योंकि उसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, इसलिए उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? 0. If electrons are added or removed from atoms, a net charge comes on an atom. Now this atom is called an ion. अगर किसी एटम में हम इलेक्ट्रॉन निकाल लें या किसी एटम को इलेक्ट्रॉन दे दें, then that atom gets converted into an ion. वो कैसे होता है अभी देखेंगे हम, ठीक है? हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था, but we'll revise it. Next, ion can be positively charged or negatively charged. आयन वो है जिसके ऊपर चार्ज होता है, एटम वो है जिसपे चार्ज नहीं होता है. एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं. आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर नॉट इक्वल. इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा भी हो सकता है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम भी हो सकता है, देन पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है. नेक्स्ट, ये पेज नंबर 37 पे दिया था आपकी क्लास 9th की एनसीईआरटी में, पेज 37. इनकेस आपको याद नहीं है, प्लीज इसे रिवाइज करिए. मुझे ये टेबल आपके टिप्स पे चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे. मतलब मैंने आपसे पूछा कि भाई पहले तो इस टेबल को याद करना है आपने. कैसे करना है समझिए. इसमें कुछ चीजें हैं. ये सारे ये वाले सारे, ये सारे क्या हैं? दीज आर मोनोवेलेंट, या वेलेंसी लिखिए. मोनो मतलब वन वेलेंसी. ये सारे आयंस हैं. कौन से आयंस हैं? मोनोवेलेंट आयंस है. मोनोवेलेंट, वन वेलेंसी वाले. दिस इज बाइवेलेंट. ये सारे बाइवेलेंट हैं जिनकी वेलेंसी 2 है. बाइवेलेंट. नेक्स्ट इज ट्राइवेलेंट. ये सारे आयंस वो हैं जिनकी 3 वेलेंसी है. अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है? वेलेंसी 1, 2 या 3. वेलेंसी 4 भी हो सकती है क्या? 4 हो सकती है. 5 वेलेंसी, 5 वेलेंसी होती है किसी की? 5? हाँ, कभी नहीं हो सकती. 5 वेलेंसी इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. फॉस्फोरस का एक केस है, अगर आपके ब्रेन में आ रहा होगा, दैट विल स्टडी लेटर ऑन इन हायर क्लासेस. जनरली 5 नहीं होती है. वेलेंसी क्या होती है? 8 - 5, दैट इज 3. 6 भी नहीं होती. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, देन वैलेंसी इज 8 - 6, दैट इज 2. ठीक है. कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी. क्लास 9th का एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर. ठीक है. नेक्स्ट पढ़ते हैं. ये सारे क्या हैं? आयंस. इनका एक और नाम है, क्या बोलते हैं? मोनोएटॉमिक आयंस. मोनोएटॉमिक, एक ही एटम है, सिंगल एटम, सिंगल मोनोएटॉमिक. और ये सारे क्या हैं? पॉलीएटॉमिक. पॉलीएटॉमिक, ठीक है. मोर देन वन एटम कंबाइंड. ठीक है. और आयन है ये, आयन क्योंकि इस पे चार्ज है. ये सारे चार्जेस लिखे हैं. प्लस का मतलब +1 +1 +1 +1, सिंपल प्लस. इधर नेगेटिव का मतलब -1 -1 -1 +2 +2 +2, ये चार्ज दिया हुआ है. ठीक है. ये टेबल अच्छे से आना चाहिए आपको. मतलब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज सोडियम आयन, तो आप क्या बोलेंगे? Na पॉजिटिव. पोटेशियम आयन, K पॉजिटिव. सिल्वर आयन, Ag पॉजिटिव. कॉपर 1 इज द वैलेंसी. कॉपर आयन, Cu पॉजिटिव. मैग्नीशियम, Mg2 पॉजिटिव. कैल्शियम, Ca2 पॉजिटिव. जिंक, Zn2 पॉजिटिव. एल्यूमिनियम, Al3 पॉजिटिव. हाइड्रोजन, H पॉजिटिव. क्लोराइड, Cl नेगेटिव. ऑक्साइड, O2 नेगेटिव. नाइट्राइड, N3 नेगेटिव. फॉस्फेट, PO4 3 नेगेटिव. कार्बोनेट, CO3 2 नेगेटिव, सो ऑन. अच्छे से याद होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, ये केमिकल फॉर्मूलाज हमने बनाने सीखे थे क्लास 9th में. ठीक है. फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. एटम के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. इट कैन बी डिवाइडेड इन केस इट इज, बिकॉज इट इज डिवाइडेड फर्दर, तो हम उसे 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं. उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. फॉर एग्जांपल कार्बन मैंने लिया. दिस इज व्हाट कार्बन का ये क्या है? 6 एटॉमिक नंबर. 12 का एटॉमिक मास. सोडियम का 11 का एटॉमिक नंबर. 23 का एटॉमिक मास. 6 उसका atomic number. Therefore electron 6, proton 6, both are equal. 6 6. Therefore net charge on carbon is 0. Net charge is 0. Sodium, electron and proton both are equal to the atomic number. Both are equal to the atomic number. Both are equal. Neutral atom. Net charge इस पे भी 0, इस पे भी net charge 0. दोनों पे net charge 0 है क्योंकि दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर हैं. They are equal. लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के आर नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सोडियम. दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है. अब आयंस कैसे बनता है? अभी हमने लास्ट पहले पढ़ा था. आयन आर फॉर्म्ड बाय गेनिंग और लूजिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब कैसे करते हैं वो समझते हैं. इफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम एटम्स, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया या रिमूव कर दिया, नेट चार्ज कम्स ऑन एन एटम. नाउ दिस एटम इज नोन एज आयन. फॉर एग्जांपल क्लोरीन मैंने लिया. एटॉमिक नंबर इज 17, मास नंबर 37.5. ठीक है. डेसिमल में होता है, ये भी पढ़ा था हमने 9th में. कैसे आता है डेसिमल में? क्यों आता है? हाँ,
इट इज नॉट एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज, क्योंकि इसके अंदर दो आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन का 35 वाला, क्लोरीन का 37 वाला, दोनों की रेशियो होती है 1%। फिर हमने एवरेज एटॉमिक मास निकालना सीखा था वहां, ठीक है, उसकी वजह से इसका एवरेज एटॉमिक मास 35.5 है। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, देयरफॉर प्रोटॉन्स भी 17, इलेक्ट्रॉन भी 17। इलेक्ट्रॉन 17 इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखी थी हमने, 2,8,7 बोहर्स मॉडल अलग अलग शेल्स में प्लेस किया था, 2,8,7। अब या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दे, ठीक है, टू कंप्लीट इट आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, क्या इजी है इसके लिए? गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के लिए क्या इजी है? गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। सो क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन जो भी हैं, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, जब गेन करेगा तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। 17 से एक गेन किया है, 18 आ गए। अब यहाँ क्लोराइड आयन है, दिस इज क्लोराइड आयन, दिस इज क्लोरीन एटम। क्लोराइड आयन में इलेक्ट्रॉन्स आर 18, प्रोटॉन सेम है जितने यहाँ थे। कितने थे यहाँ पे? 17 थे, यहाँ पे कितने हो गए? 17। प्रोटॉन सेम रहेंगे। प्रोटॉन्स डोंट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन। क्या रोल प्ले करता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 18 हो गए क्योंकि एक गेन किया। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन देखते हैं, 2,8,8। पहले क्या थी? 2,8,7। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हमने गेन कर लिया, इसलिए 2,8,8। इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन प्रोटॉन्स बाय 1। 18 माइनस 17 1। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है एक, देयरफॉर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज से बाय 1। देयरफॉर क्लोराइड आयन पे -1 का साइन आता है या सिंपल माइनस आता है? सिंपल माइनस या -1, बोथ आर करेक्ट क्लोराइड आयन पे। नेक्स्ट, ये जो क्लोराइड आयन है, इट इज अ नेगेटिवली चार्ज आयन। इसे क्या बोलते हैं हम? एनायन। क्या बोलते हैं? एनायन। ए में, ए के सेंटर में एक माइनस आता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर नोन एज एनायंस। दो टाइप के आयन, एक एनायन और दूसरा कैटायन। कैटायन भी करेंगे हम। सपोज नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, इलेक्ट्रॉन्स 8, प्रोटॉन्स 8, EC 2,6। पहले शेल में 2, सेकंड शेल में 6। अगर याद नहीं है तो प्लीज क्लास 9th का एटम एंड मॉलिक्यूल अच्छे से रिवाइज करिए एक बारी, एक जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। ऑक्सीजन एटम लिया मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए। अब 2,6 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या 6 लूज कर सकता है? विच इज इजियर? गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इज इजियर, देयरफॉर इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैसे आए 10? 2 गेन किए। अब 10 जब गेन कर लिए तो इसकी EC क्या हो गई? 2,8। पहले क्या थे? 2,6। टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 10, प्रोटॉन्स रिमेन सेम। यहाँ पे भी 8 थे, यहाँ पे भी 8 थे। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं? 2। देयरफॉर -2 या नेट चार्ज इज कम -2। 10 नेगेटिव, 8 पॉजिटिव, नेट चार्ज -2। देयरफॉर O2 नेगेटिव। ऑक्साइड आयन में ऊपर 2 नेगेटिव होता है हमेशा। दिस इज ऑक्साइड आयन, नेगेटिवली चार्ज आयन, देयरफॉर इट इज कैटेगराइज्ड एज एन आयन। एन आयन। नेक्स्ट वी कम डाउन टू कैटायंस। कैटायन के T में प्लस बनता है, T में प्लस बनता है। कैटायंस आर व्हाट? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर नोन एज कैटायंस। दो एग्जांपल लेते हैं इसके। सपोज सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। 11 है एटॉमिक नंबर, इसलिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों 11 11। EC लिखी 2,8,1। अब या तो 7 गेन कर ले या 1 लूज कर दे, विच इज इजियर? लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर सोडियम के पास जो कि 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 11 थे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। एक इसने लूज किया है, when 1 is lost 10 इलेक्ट्रॉन बचे। प्रोटॉन्स यहाँ पे भी 11 तो यहाँ पे भी 11, सेम। प्रोटॉन्स विल रिमेन सेम। प्रोटॉन्स एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का गेन और लूज ही होता है। गेन, लूज या शेयरिंग, विल स्टडी ऑल दिस इन 10th क्लास ओनली। Protons are more than electrons by 1. 11 minus 10 is 1. Therefore, 1 unit positive charge comes over here. Protons पे positive charge, electrons पे negative charge. Protons electrons से ज्यादा है by 1. Therefore, Na के ऊपर +1 या simple plus आता है। इसलिए सोडियम का आयन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज +1 यूनिट वाला होता है। सोडियम आयन प्लस आता है, इसलिए इसे कैटायन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम, Mg 12 atomic number, 24 is the mass number. Mg, electrons are 12, protons are 12. 2,8,2 is the इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब या तो ये 6 गेन कर ले या 2 लूज कर ले, तो क्या करेगा ये? इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 10। वी स्टार्टेड फ्रॉम 12, 2 इसने लूज कर दिए तो बचे 10।
प्रोटॉन्स हैं 12, इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हैं बाय 2 यूनिट्स, देयरफॉर 2 + 2 चार्ज कम्स ओवर हियर। मैग्नीशियम पे 2 यूनिट्स का पॉजिटिव चार्ज है इसलिए कैटायन बना। प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से 2 ज्यादा है, प्रोटॉन्स की वजह से 12 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 10 नेगेटिव, प्रोटॉन्स मोर देन इलेक्ट्रॉन बाय 2, देयरफॉर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कम्स ओवर। इसलिए मैग्नीशियम आयन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, Mg2 पॉजिटिव ही बनाता है वो, क्योंकि उसने 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, कभी 3 नहीं करता है, 2 ही करता है, इसलिए Mg2 पॉजिटिव ही होता है हमेशा। फाइन। सो अब हमने ये टेबल में ये आयंस कैसे बने हैं ये हमने सीखा है अभी तक, ठीक है, कैसे आए, हाउ ये आयंस आते कैसे हैं, ठीक है, हमें सारे आयंस कैसे बने वो नहीं सीखना है, अभी के लिए हमने कुछ आयंस देखे कि कैटायन और एनायन बनते कैसे हैं। तो अब ये आई होप कि आपने सारा टेबल अच्छे से मेमोराइज कर लिया होगा। अगर मेमोराइज नहीं किया है प्लीज पहले मेमोराइज करिए फिर आप आगे जाइए। ये पहली सीढ़ी है केमिकल रिएक्शंस की। अगर अगर ये आयंस याद नहीं होंगे तो केमिकल फॉर्मूला बनाना नहीं आएगा, अगर केमिकल फॉर्मूला नहीं बनाना आएगा तो केमिकल इक्वेशन नहीं लिख सकते आप, केमिकल इक्वेशन नहीं लिख सकते तो बैलेंस नहीं कर सकते। इस चैप्टर में 4 स्टेप्स हैं, सबसे पहली सीढ़ी है ये, प्लीज आयंस को अच्छे से मेमोराइज करिए, याद हो जाएंगे, इट विल जस्ट टेक 10-15 मिनट्स, ठीक है, जस्ट उसके बाद ही आप फॉर्मूलाज बना सकते हैं। चलिए आई होप अब आपने याद कर ली हैं, चलिए हेल्प करिए। जिंक क्लोराइड हमने लिखा, क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ा था हमने, क्रिस क्रॉस, जिंक के नीचे उसकी वैलेंसी लिखी, जिंक की वैलेंसी, ठीक है, ये टेबल आपको याद है, जिंक की वैलेंसी बोलो क्या आती है 2, ये देखिए जिंक +2, तो हमने जिंक के नीचे उसकी वैलेंसी लिखी। क्लोराइड, क्लोराइड आयन उसकी वैलेंसी -1, ठीक है, एक की 2 एक की 1, प्लस माइनस नहीं चाहिए, वी क्रॉस इट, तो एक फॉर्मूला बना क्या, जिंक क्लोराइड। मतलब इस टेबल में अगर आपको आयंस अच्छे से आते हैं तभी आप किसी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है, आपको एक टेबल अच्छे से आना चाहिए फिर फॉर्मूला बनाना आएगा, फॉर्मूला बनाना आएगा तब हम इस चैप्टर की रिएक्शंस बनाना सीखेंगे। जब हम रिएक्शन सीख लेंगे देन विल नो हाउ टू बैलेंस देम, ठीक है, विल लर्न। कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम की वैलेंसी, कैल्शियम क्या होती है 2, करेक्ट, कैल्शियम +2 इस टेबल में है, ये रहा कैल्शियम +2, ब्रोमाइड ये ला, ब्रोमाइड आयन माइनस, दोनों के एक के नीचे 2 एक के नीचे 1, क्रॉस किया क्या आया, CaBr2 is the formula of calcium bromide. Next, aluminum iodide, aluminum की वैलेंसी 3, iodide की 1, क्रॉस किया, aluminum की 3, ये रही Al3+, iodide की ये क्या फॉर्मूला है Ali3 is the formula, ठीक है। नेक्स्ट, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम की वैलेंसी ये रहा सोडियम +1, ऑक्साइड की 2, क्रॉस किया क्या आया Na2O, Na2O is the formula of sodium oxide. कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम की 2, ऑक्साइड की 2, क्या आया, दोनों की 2 फॉर्मूला क्या है Ca2O2, करेक्ट है, गलत, ठीक है, इसमें क्या करते थे, नेक्स्ट दोनों के कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते थे, कॉमन फैक्टर क्या है दोनों का 2 से डिवाइड किया क्या आया CaO इज द करेक्ट, CaO इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्साइड की 2, क्रॉस किया इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, Al2O3। नेक्स्ट, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन की 1, ऑक्साइड की 2, क्रॉस किया क्या आया H2O, जिसे हम वाटर बोलते हैं, इसका एक और नाम है हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड वाटर। जिंक सल्फाइड, जिंक की 2, सल्फाइड की 2, क्रॉस किया Zn2S, लेकिन करेक्ट नहीं है, क्यों, कॉमन फैक्टर से हमने डिवाइड करना था, दैट इज 2, तो क्या आया Zns। जिंक नाइट्राइड, जिंक की वैलेंसी 2, नाइट्राइड ये रही क्या होती है 3, क्रॉस किया क्या फॉर्मूला है Zn3N2, Zn3N2 क्रॉस। नेक्स्ट, अमोनियम क्लोराइड NH4 ये रहा, पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक NH4 पॉजिटिव, क्लोराइड -1, 1 चाहिए बस, दोनों का 1, इसकी भी 1, क्लोराइड की भी 1, क्रॉस किया NH4Cl इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम की 3, हाइड्राइड की -1, 1 लिखा सिर्फ, ठीक है, 3 and 1 क्रॉस किया AlH3 इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्राइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम की 1, हाइड्रोक्साइड की 1, KOH इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के नीचे उसकी वैलेंसी लिखी, कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी, हाइड्रोक्साइड OH ये रहा, OH नेगेटिव, उसके नीचे -1, OH 1 लिखिए सिंपल, ठीक है, क्रॉस किया क्या आया CaOH ट्वाइस, Ca इधर 1 आ गया, OH के नीचे 2 आ गया, सही है, देख लो यार सही है क्या, ऐसे मत करो यार, 9 तो क्लियर है बिल्कुल अच्छे से,
हाँ Ca आ गया क्लियर? सही है? नहीं है? नहीं है? सही है? अरे नहीं है भाई, गलत है ये, इट इज इनकरेक्ट। क्या होना चाहिए? CaOH होल ट्वाइस, ब्रैकेट लगा के ट्वाइस आना है। ये 2 पूरे हाइड्रोक्साइड आयन से मल्टीप्लाई होना है, 2 ध्यान रखना है। 2 जब जाएगा हाइड्रोजन पे नहीं जाएगा, कहीं ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन पे ले जाओ, पूरे ब्रैकेट लगा के OH ब्रैकेट के अंदर नीचे 2 आएगा। ठीक है, दोबारा से करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट ये रहा, कार्बोनेट 2, Ca2 CO3 ट्वाइस, Ca2 CO3 ट्वाइस। अब क्या करना है? डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर दैट इज 2, डिवाइड किया, क्या आया? Ca CO3 इज करेक्ट। यहां नहीं छोड़ना है प्लीज। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम की 1, सल्फेट की 2, क्रॉस करना है, ब्रैकेट चाहिए, NH4 ब्रैकेट ट्वाइस SO4। ठीक है, चलिए खुद लिखने हैं फटाफट। अब तक तो आगे होंगे आपको, ठीक है, बिना टेबल को रेफर किए देखें कितना आ गया। एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम की लिखो फटाफट, नाइट्रेट की, चलो एल्यूमिनियम की 3, नाइट्रेट की 1, फॉर्मूला लिखो उसका। गुड, क्या आया? AlNO3 ब्रैकेट NO3 ब्रैकेट थ्राइस, अमोनियम फॉस्फेट, फॉर्मूला बनाओ फटाफट, अमोनियम फॉस्फेट, चलो अमोनियम NH4 1 फॉस्फेट, ये रहा वैलेंसी 3, फॉर्मूला NH4 ब्रैकेट थ्राइस PO4, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम की वैलेंसी 1, हाइड्राइड की 1, क्या आया? NaH। ठीक है, लास्ट, चलो कैल्शियम सल्फेट बनाओ, बनाओ फॉर्मूला बनाओ फटाफट। कैल्शियम की वैलेंसी क्या? 2, सल्फेट की 2। देखना नहीं है कि टेबल देख के बना रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, किताब नहीं जानी है पेपर देने के लिए, देखो सिर्फ ब्रेन जाना है तुम्हारा। कैल्शियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की 2, नीचे क्रॉस किया, Ca2SO4 ट्वाइस, करेक्ट है? नहीं, क्या करना है? दोनों को 2 से डिवाइड, CaSO4, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम की 2, हाइड्रोजन कार्बोनेट ये रहा, इसे बाय कार्बोनेट भी बोलते हैं, बाय कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट 1, क्रॉस किया, फॉर्मूला आया Ca ब्रैकेट HCO3 ट्वाइस, डन, HCO3 ट्वाइस।